Samurai Services, led by Captain Sandhya of the Military Police. This team includes Agniveers and regular recruits. Though they underwent rigorous training and practice in their individual areas, they have successfully managed to cohesively work together under the leadership of Captain Sandhya to be ready for this parade. Hello and welcome to my podcast Mask Utaro Ji, the show where we dive deep into the stories that shape India today. I'm your host Payal Bhayana, and in this episode we are tackling the topic that's very powerful and long overdue. Yes, the evolving role of women in the Indian Army. तो चलिए डिस्कस करते हैं with Colonel Mayank. Namaskar. Namaskar, Payal ji. Thank you so much for giving the opportunity. I'll end up calling him Mayank, but he's a friend also, so I don't call him Colonel. But today we are being very serious. तो आप मुझे एक बात बताइए, नारी शक्ति के बारे में हर वक्त बात होती है जी और हमेशा हम देखते हैं, चाहे वो परिवार को संभालने का काम हो, रसोई को संभालने का काम हो, रिश्तेदारी निभानी हो, रिश्ते निभाने हो, और वो नारी मतलब चाहे वो भाई के साथ हो, पेरेंट्स के साथ हो, माता पिता के साथ हो, अपने ससुराल में हो, ससुराल में सारे रिश्ते, हर काम में वो हमेशा जुटी रहती है और हर वक्त वो एक एज अ विनर ही उभरती है। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया, हम लोग पहले सोचते थे कि एक वुमन ओनली हैज वन ड्यूटी एंड दैट इज टू बी इन द किचन। किचन तो वो वाले हाल, समय भी चले गया, धीरे धीरे इतने प्रोग्रेसिव हो गए, हम लोग को टाइम लगा, पर इंडिया वहां पे पहुंच गया है जहां पे अब विमेन हमारी सीईओ भी हैं, कंपनी संभाल रही हैं, बिजनेस विमेन हैं, कितना कुछ कर रही हैं। वो एक अपने घरों में एक सेकंड इनकम की भी उसमें भी वो एक रोल प्ले कर रही है, एक सेकंड इनकम लाने की। तो आज हम बात करेंगे कि विमेन का क्या रोल है आर्मी में, कैसे हुआ, ये कैसे बदलाव आया। और शुरू में मैं जब शुरू में ये बात होती थी तो बहुत लोग ऑब्जेक्ट भी कर रहे थे इस बात को लेके कि नहीं, उनको सिर्फ ग्राउंड लेवल पे रखिए या वो रखिए। तो आज हम उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, व्हाट आर सम स्टैंड आउट एग्जांपल्स ऑफ लीडरशिप और करेज यू हैव सीन फ्रॉम योर फीमेल कोलीग्स? First of all, thank you, Payal ji, for taking up such a good topic. It's a very emotional topic and a very valid topic to be taken. Why? Because everybody sees women in just one role, as you said, in the kitchen. Yeah. Nobody accepts that a woman can come, she can stand shoulder to shoulder, work in the armed forces, which is a demanding job. जिसको अधिकतर लोग कहते हैं कि मर्दों वाला काम है, क्योंकि पोस्टिंग्स भी बहुत होती है ना। हाँ। तो बच्चों को छोड़ना और परिवार को छोड़ना जी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती जी। तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया था जहां पर मैं पोस्टेड था, मैंने सन 95 में पहली बार विमेन ऑफिसर्स को फौज में ज्वाइन करते देखा। सो दैट वाज द स्टार्ट। और मेरी खुशकिस्मती ऐसी थी कि जो विमेन ऑफिसर्स मेरे सामने पोस्टेड थी, they were highly committed and मेहनती। आई वुड से कि हमें लगता था कोई मेल ऑफिसर जो होगा वो शायद पीछे छूट जाएगा। इट मे बी दैट दे हैड टू प्रूव देयर वर्थ कि भाई हम आ गए हैं और हम वी आर एज गुड एज आवर है। ये तो सदियों से विमेन के साथ होता है, ऑल द टाइम वी आर ट्राइंग टू प्रूव समथिंग। जी जी जी। पर पायल जी, आई सॉ वन वेरी गुड थिंग सिंस आई एम अ लॉजिस्टिशियन एंड वी वर इशूइंग सम स्टोर्स and the book said that the stores cannot be issued beyond a point. But this lady, she comes to me and she says, sir, if we do this way, I think we can help and we can do the issue of stores. Payalji, I listened to what she said, and when I went back home, I was a happier man because she had drilled some sense into me. There came the compassion which a woman carries. This girl, she was compassionate towards the unit to which she was serving. She saw a positivity that something can be done which is not written in the books, but which is not illegal also. So within the framework of legality, she found out a way as to how the thing could be done. And that was a very beautiful experience. I will never forget that experience. Are you allowed to take her name or not? I don't know whether she would like her name to be taken, but then I would proudly say that she lovingly calls me Taji and I call her Bahini. Bahini in Nepalese is
younger sister, and Daji is elder brother. अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि जो इंटरनल कल्चर होता है आर्मी का, जी उसमें कैसे अडैप्ट करते हो आप टू इंक्लूड women, and how do you support women officers? जी जी पायल जी, initially when the women officers landed in the units, so it was a very new thing. So the Jawans were used to addressing officers as sir. Now there was a Jawan who came to me very innocently. He said कि sir, हमारे पास में कल एक लेडी ऑफिसर आ रहे हैं, तो उनको हम क्या सर बोलेंगे कि क्या बोलेंगे? अच्छा, So I said नहीं, उनको आप मैडम बोलो, सॉरी। मैडम बोल सकते हो उसको. और and see, this was from a Jawan and a very innocent question. He didn't know how to address that issue, so he came to me and asked me Yeah. कि उनको कैसे बोलेंगे. And when the women officers arrived, yes, there were certain apprehensions in all quarters. कि how will they perform their duties? Initially, नाइट ड्यूटी में उनको भेजने के लिए लोग घबराते थे कि इनको रात में अकेले में कैसे भेजेंगे. तो सपोर्ट सिस्टम क्या था? सपोर्ट सिस्टम ऐसा था कि सी in the army there is one basic thing which is ingrained in everybody, that a woman is to be respected. That was the bedrock on which the entire model probably has been built. वो यत्र नारी पूज्यन्ते का जो है बात है, the Indian culture and the ethos of the army that really helped women gel with the men folk and very seamlessly enter into your unit and without disturbing the fabric, be part of the system. So Okay. that probably helped. What in your view is the common perception that the armed forces are a man's domain? Was it earlier you had this perception, or it changed with time, or when you saw that women army officers are doing well, they're performing well, तो perception change हुआ? पहले क्या था और अब क्या है? So am I supposed to give you a truthful answer or a diplomatic one? Truthful better रहेगा. Truthful. Yes, I too had apprehensions as to how the women will perform in the armed forces. And when they came, yes, I had apprehensions. I narrate to you a very beautiful thing. In our unit, we had a tradition. When the officer gets promoted, the epaulets, the badges of rank, they are put in a war trophy. And in that trophy, you add various types of liquor. It can be beer, rum, whiskey, gin, brandy, whatever. Concoction. You make a concoction of it, and the officer is supposed to drink the entire content and then take out the badges of rank, and then you are allowed to wear them. So when this officer was to be promoted, so I thought that I should be a bit relaxed. So I nearly filled the trophy with beer and just added some bit of rum or whiskey. So when she drank it, and she knew that it was my doing, so she comes to me and she says, "क्या दाजी आपने क्या drink बनाया?" So that day I realized that I was under that mindset that no, you are supposed to treat them differently and be slightly considerate towards that point. Yes, you are supposed to respect them, treat them differently, yes, because of their structure. They are designed in a particular fashion. But mentally, I think they are pretty robust, and I would say that mentally they are tougher than men when it comes to things. अच्छा, अब जब ये बताइए, do you believe कि women should be allowed in all combat roles? Why and why not? There is a big debate going on whether women should be in all combat roles or not. When I say all combat roles, I refer to the infantry part of it. Now, what happens is that we still belong to that old school that if in case a man gets a prisoner of war, becomes a prisoner, because the infantry is supposed to go and fight in the front. Yeah. And there are chances that you might be taken as a prisoner of war. So, a man being taken as a prisoner of war, it's a norm because we have been seeing it. But would we like a lady to be taken as a prisoner of war? That is a debate. Probably that is going on as to how do we treat that. So till now, what I have seen is that the women officers have gotten into the fighting arms. They are part of the air defense artillery. They are part of engineers.
But when it comes to facing the enemy right in the front, in the infantry, we have not gone that far. Maybe we might travel that extra distance. Probably things would change as the battle scenario changes. But at this point, I really don't know as to when do we achieve that. अच्छा, जैसे हमने वो मूवी उरी उरी आई थी जी जो, जी उसमें देखा था कि एक वुमन एयरफोर्स ऑफिसर जी जी एयरफोर्स में है वो फाइटर वो पायलट्स लेके है गई थी प्लेन। जी जी we not only have helicopter pilots, we have fighter pilots as women. तो वो भी तो सेम ही हो गया, तो फिर इधर और उधर में फर्क क्या हो गया कि एयरफोर्स में हो सकते हैं पर। Air Force has taken a step. अच्छा, The army probably has to take that step. ओके। जी एंड वहाँ एयरफोर्स में जैसे होता है कि यू आर इन योर डोमेन व्हेन यू आर इन अ प्लेन, you are in a confined space, you are going and you don't expect that the plane will get down into the enemy territory. Probably that would be the thought process. The armed forces, if in case you are in the infantry, you cross the international boundary and you go and fight into the enemy lines. Okay. So probably that would be a compelling factor. And how has the Supreme Court's ruling on permanent commission for women changed the dynamics of the army? That's a very important thing. Earlier, what used to happen that the women used to come into the armed forces and they used to come for a particular time frame, a short service commission. And after the period of engagement, they used to be let out of the armed forces. So there was a feeling in the women also that we are being taken just to fill the gap where you have deficiency of male officers. Naturally. Because this is what is being done. You take them into the armed forces, you use them, and once you have crossed that limit, you tell them, please go away. So the army took steps. First, they were given the natural 5 years were there. Then it was increased to 10 years. Then it became 14 years. The lady officers, they had to fight their case. They went to the... They filed the case. Yes, they fought their cases. And ultimately, the court ruling came that permanent commission should be there for women. And I can... Yes. Supreme Court can interfere in the army matters. Supreme Court can sit over anything in this country, I feel. Army is not a pariah. नहीं, पढ़ाई में मेरे को लगता है आर्मी के अपने रूल्स होते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं ऑफिसर्स, जो वो डिसीजन ले सकते हैं जी। जो एक सिविलियन नहीं ले पाया। मतलब सिविलियन का लेना आई थिंक इट्स नॉट राइट, बट चलो अब हमारा I don't know. सिस्टम इज I don't know what were the dynamics, but one fine day we had an order that ऐसा होगा तो हो गया। अच्छा, ये जो जो आपकी ट्रेनिंग देते हैं जी। तो इसका जवाब थोड़ा हिंदी में भी दीजिएगा, क्योंकि कई लोग मेरे बहुत सारे व्यूअर्स बोलने लग जी, जाते हैं कि जी। इंग्लिश में, तो मैं ना इंग्लिश में ही करता हूँ। जी जी अब जैसे जो करंट ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे आप बताते हो कि बहुत टफ होते हैं, जी। तो क्या विमेन के लिए फेयर और चैलेंजिंग है कि आपको लगता है कि विमेन आर एबल टू डू इट? देखिए जिस प्रकार से जो आपका प्रशिक्षण होता है और कोई भी मेल मेंबर अगर उसको अंडर को करता है तो उसके लिए वो टफ एंड चैलेंजिंग होता है, उसी प्रकार से विमेन के लिए भी वो उतना ही टफ एंड चैलेंजिंग होता है। पर सेम इक्वल द सेम लेवल पे ट्रेनिंग होती है कि विमेन के लिए थोड़ी इजियर होती है या कुछ? फिजिकल पैरामीटर्स जो होते हैं, मापदंड थोड़े से रिलैक्स्ड होते हैं, बिकॉज फिजिकल स्ट्रक्चर जो होता है वुमेन का अलग है, मेन फोक का अलग है। एंड्योरेंस लेवल फिजिकल उसको लेने का मेल का अलग होता है। तो दैट बायोलॉजी हैज बीन स्टडीड एंड साइंटिफिकली दे हैव इवॉल्व्ड द इवैल्यूएशन पैटर्न कि किस प्रकार से उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। अब जैसे ये जैसे व्हेन women have their periods, जी stay for 4 days, जी उनको रिलैक्सेशन मिलती है कि नो दे आर स्टिल नहीं, नहीं मिलती? यू वोंट इवन कम टू नो कि ऐसी कोई बात है। दे आर वर्किंग नॉर्मली। तो ये बिग इशू बनाते हैं कॉर्पोरेट में जो करती हैं कि आज ये प्रॉब्लम है तो नहीं, आई वोंट बी एबल टू कमेंट ऑन दैट बिकॉज आई हैव नेवर सीन इन माय सर्विस कि ऐसे कोई बहाने लेकर आए मेरे पास में। और आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बता ही दिया था कि आपने किसी विमेन ऑफिसर्स के साथ काम करा है, जी पर कोई आप किसी को जानते हैं जिन्होंने डिफिकल्ट सिचुएशन में, जैसे अभी वॉर हुई है, जैसे पाकिस्तान के साथ ही वॉर हुई है, उसमें आपको लगता है विमेन को भी उतना ही टफ रोल दिया गया होगा जितना? पायल जी, सबसे टफ रोल मेरे ख्याल से होता है कैमरे के सामने बैठ के बोलना। और आप यकीन मानिए, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, दे बीट एवरीबॉडी हैंड्स डाउन। दे डिड अ स्टेलर जॉब। रही टफ काम की,
तो मैं बहुत ऑफिसर्स को जानता हूं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट स्केल कर रखा है। विमेन ऑफिसर्स। विमेन ऑफिसर्स, हाँ। सिंस वी आर डिस्कसिंग विमेन ऑफिसर्स, तो विमेन ऑफिसर्स ने माउंट एवरेस्ट स्केल किया हुआ है। सो ऐसा कोई काम मुझे अभी तक दिखा नहीं जो कि विमेन ऑफिसर्स ने नहीं किया है। पर आपको लगता है ऐसे बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं जो, जी। तो वो जेंडर बेसिस पे होते हैं कि नहीं, विमेन से मत, विमेन को की सजेशन मत लो, एडवाइस मत लो? आर्मी में ऐसा नहीं होता, सेम लेवल पे ट्रीट किया जाता है विमेन की भी एडवाइस को, बात को। Finally, the beauty is once you are a commissioned officer, you are an officer. नो वुमन। Then you are not a woman or a male officer. Uh, जब ऐसा मौका आता है डिफरेंशिएशन का फॉर वट एवर रीजन, देन इट इज देयर। अदरवाइज ड्यूटी देने में, काम करने में, काम निकालने में, डांट लगाने में, सॉरी, कोई छूट नहीं है। आप वुमेन हैं कोई बात नहीं, आप मेल हैं कोई बात नहीं, डांट दोनों को बराबर पड़ेगी अगर आपने बराबर गलती की है तो, कोई छूट नहीं। और इनका जो पे स्ट्रक्चर वो भी सेम होता है 100% सेम। ये नहीं कि विमेन है तो उनको। नहीं। आपको लगता है ऐसे कोई पॉलिसी चेंजेस आएंगे जो और ज्यादा विमेन को इंट्रीगेट कर सकें इन ऑल ब्रांचेस ऑफ द आर्मी? ऐसे आपको लगता है विद टाइम चेंज होगा या कोई ऐसे होगा कि हर ब्रांच ऑफ आर्मी में जी विमेन? नहीं, व्हाट आई फील इज कि वी हैव सीन अ पैराडाइम शिफ्ट इन द बैटल सिनेरियो, जो हमने अभी देखा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, वेयर हमारे कोई भी आर्म फोर्सेस ने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया एंड वी फॉट द वॉर सिटिंग ऑन आवर साइड ऑफ द बाउंड्री। अब ऐसे में है यू आर सिटिंग इन योर ओन डोमेन, तो इसमें मेरे ख्याल से कहीं मर्द और महिला का कोई अंतर नहीं रह जाता। नहीं, पर ये तो आपने जैसे पहले बोला ना कि एयरफोर्स में स्टिल विमेन है, जी जी। पर बाकी जो ब्रांचेस हैं आर्मी, नेवी में है, नेवी में इतनी टफ पोजीशंस दी जाएंगी उनको, ऐसे सिचुएशंस में उनको आगे किया जाएगा नेवी में? जब अगर नेवी में अगर आप शिप पर हैं तो आपकी शिप तो नेचुरली पानी के अंदर सेल कर रही है, तो उसमें तो कोई फिर फासला रह नहीं गया। एनिमी शिप भी होगी, आपकी शिप भी ये सेल कर रही है, तो कोई अंतर रह नहीं गया। आर्मी में टिपिकल केस है, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि यू आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एनिमी, जो इन दो ब्रांचेस में नहीं हो रहा है। सो दैट इज व्हाई प्रोबब्ली वी आर हेजिटेटिंग इन टेकिंग दैट स्टेप। और जैसे आपने विमेन ऑफिसर्स के साथ काम भी किया है जी। और आपने उनको देखा है वो किस तरीके से काम करती हैं, और आप बहुत उनकी, मतलब यू रियली प्रेजिंग देम, देयर डिटर्मिनेशन, देयर ग्रेट। तो क्या ऐसे होता है कि एक सपोर्ट एक्स्ट्रा मिलती है विमेन ऑफिसर्स को इन टर्म्स ऑफ मेंटरशिप या फैमिली सपोर्ट, लीडरशिप डेवलपमेंट की सपोर्ट? उनके साथ कोई आउट ऑफ द वे जाके कुछ होता है? आउट ऑफ द वे शायद उनके घर में उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाती होगी। आर्मी में तो सबको कि बराबर है। हाँ, कि अगर काम करने जा रही है तो हस्बैंड शायद बेशक उसके लिए रोटी बना के दे दे उसको, वरना ऑफिस में कोई कोई छूट नहीं है, सब बराबर है। ऐसे होता है कि उनकी पोस्टिंग के लिए थोड़ा कंसिडर कर लेते हैं कि फैमिली यहाँ है तो उनकी पोस्टिंग ना हो। पोस्टिंग होती है, स्पाउस कोऑर्डिनेटेड पोस्टिंग होती है। जैसे कुछ लोग जो हैं दे मैरी इनटू द आर्मी, व्हेन आई से लोग, मतलब कि द वुमेन गेट मैरिड टू से आर्मी ऑफिसर्स। So the branch which does our posting, it is considerate and it tries its level best to post them together in a particular station. It may not be in the same unit, but they make an endeavor to post them into a same station. अच्छा, अब आप बताइए जो यंग बॉयज जी। गर्ल्स तो की तो हम बात ही कर रहे हैं, विमेन की, यंग बॉयज जो अब आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं या आर्मी में जाएंगे, आप उनको क्या सलाह दोगे? आप उनको क्या एक एडवाइस दोगे कि हाउ टू वर्क अलोंग साइड विद विमेन? क्या आप एडवाइस देना चाहोगे? मेरे ख्याल से आज की जनरेशन जो है वो इतनी जेंडर कॉन्शियस नहीं है। What I have seen them working is that they thought that you are a female, I am a male. That really doesn't come into their mind. आपको लगता है वो गैप यंगर जनरेशन में, यूथ में खत्म हुआ है? वो खत्म हुआ है, वो मैंने देखा है उसमें। हम जितना कॉन्शियस थे, हमारी अगली पीढ़ी जो है वो इतनी कॉन्शियस नहीं है। सो आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी इशू और अ रिक्वायरमेंट टू टीच अ बॉय कि यू आर गोइंग इनटू अ सर्विस वेयर अ वुमन इज देयर। अभी आप लड़के जाते क्योंकि वो हैं एक सिविलियन लाइफ से आर्मी लाइफ में जाते हैं जी, तो थोड़ा एटीट्यूड भी फर्क होता है। एटीट्यूड उनका फौज की ट्रेनिंग सब सेट कर देती है। आप निश्चिंत रहिए।
तो आप देख रहे हैं कि जो फ्यूचर है आर्मी में विमेन का, जी वो आपको लगता है बेटर ही होता रहेगा जी और 100%। और उनका मतलब और ज्यादा मतलब वो इंटीग्रेटेड होंगी और पायल जी, आपको जान के अच्छा लगेगा कि मेरी कई स्टूडेंट्स दे आर कमांडिंग देयर यूनिट्स नाउ, वाह, और मैं बड़े गर्व से उनको फोन करता हूँ, और नेचुरली एज एन इंस्ट्रक्टर वो मेरी वो रिगार्ड करती हैं, और उनको मैं काम देता हूँ तो वो चुटकियों में मेरा काम बन जाता है। सो एफिशिएंसी में कोई कमी नहीं है, एटीट्यूड वेरी पॉजिटिव, और स्टूडेंट को तो आप हक से बोल सकते हो आप। सो all in all, I have had a very good experience, a beautiful experience, and long live the Indian Army. ठीक है। तो आज हम जनरली मैं एंड करती हूँ खुद ही लास्ट में बोलकर, पर आज मैं आपको मौका दूंगी, आप बताएं आप विमेन ऑफिसर्स के बारे में जिस थोड़ा सा ब्रीफ में कुछ बोलिए उनको इंकरेजमेंट के लिए। मैं विमेन ऑफिसर्स को एंकरेजमेंट की कोई आवश्यकता नहीं पाएंगी। चलिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा उन माता पिताओं से जो ये सोचते हैं कि अपनी लड़की को फौज में हम ना भेजें, तो फौज से बेहतर आपकी लड़की के लिए कोई भी सिक्योर जगह नहीं है। बहुत बड़ी बात कह रही है। जी, यहाँ पर हर ऑफिसर जो है, हर जवान जो है, वो नारी को उसकी रिस्पेक्ट देता है। अगर सपोज मैं यूनिट में एक सेकंड लेफ्टिनेंट हूं और मेरी वाइफ अगर कमरे के अंदर आती है, तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अगर उस कमरे में बैठे होंगे तो ही विल स्टैंड अप, वो खड़े हो जाएंगे उस लेडी को ग्रीट करने के लिए। यानी एक जनरल साहब एक सेकंड लेफ्टिनेंट की वाइफ, अब तो खैर सेकंड लेफ्टिनेंट होता नहीं, लेफ्टिनेंट होते हैं, तो अगर एक लेफ्टिनेंट या कैप्टन की वाइफ अगर रूम में एंटर करेगी तो जनरल साहब आउट ऑफ कर्टसी विल स्टैंड अप। अगर खाना सर्व होता है तो जनरल साहब जो है वो खाना बाद में लेंगे, उस कप्तान साहब की वाइफ जो है वो खाना पहले लेंगे। ये फर्क है। अगर कैप्टन साहब की वाइफ गाड़ी में बैठ रही है तो जनरल साहब उसके लिए दरवाजा खुद खोलेंगे। दैट इज द रिस्पेक्ट। आपने नॉर्मली नोट किया होगा, कोई फौजी है अगर और वो देखता है कि कोई लेडी गाड़ी में एंटर कर रही है, वो ऑटोमेटिकली उसके वो इनग्रेन्ड है, ड्रिल्ड है उसकी, वो अपने आप। तो आपके अकॉर्डिंग सबसे सिक्योर प्लेस फॉर अ वुमन इज आर्म फोर्सेस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा जब आप बात कर रहे थे एंड जिस रिस्पेक्ट से आप वुमेन के लिए बात कर रहे थे, और जिस यू हैड दैट, यू वर वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि वुमेन इतना अच्छा काम कर रही हैं आर्मी में, और यू नो उनकी पार्टिसिपेशन के लिए। तो आई वाज आल्सो गेटिंग इमोशनल एंड यू नो, चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू पायल, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। When I earned my maroon, my brigade commander told me, once a paratrooper is not always a paratrooper. You have to be that paratrooper every day. And this is what I have experienced in the army. Imandari, wafadari, bahaduri. We are trained so well to face all the odds. Being a paratrooper, that's been by far my biggest achievement in the service. We are all blessed. We are all blessed to be in the uniform. It's been 16 years, but as I look back, these 16 years just passed by. I've been a paratrooper. I've been given a chance to learn skydiving in Army. Every individual who is born must realize what is his or her passion. And once you realize that, I think making an effort to achieve that passion doesn't look like an effort. It just flows out of you.